Most English learners know these words but still use them incorrectly. In this video, I will explain every important use of has, have and had in the easiest way possible. So, आज से आपको इन 3 वर्ड्स से डरने की जरूरत नहीं है बिकॉज आज से आपकी इन तीनों से दोस्ती होने वाली है क्योंकि आप इनको अच्छे से समझने वाले हैं. So without a delay, just start this video. Welcome to the video. My name is Santosh and I am a public speaking expert and today we will talk about these 3 words has, have and had. तो आज से आपकी इन तीनों वर्ड से दोस्ती हो जाएगी और आप इन वर्ड का कभी भी गलत यूसेज नहीं करेंगे. But there is a condition. You have to watch this video till its end और इसका कोई भी पार्ट भूल कर भी स्किप मत करना. अदरवाइज आपकी इन तीनों वर्ड से दोस्ती नहीं हो पाएगी और आप ये मिस्टेक्स करते रहोगे. So without more delay, let's start this video. So basically we have divided the usage of has, have and had in few parts and we will discuss them one by one. So the first part is possession. Has, have and had possession के लिए भी use होता है. Possession means this ring. This ring is mine, right? So I have the possession of this. So मैं ये कह सकती हूँ कि I have this ring. So आप ये तो समझ गए कि has, have and had possession के लिए भी use होता है. But there is a point. आपको ये बात समझनी बहुत जरूरी है कि has किस चीज के साथ यूज होता है, have किसके साथ यूज होता है और had किसके साथ यूज होता है. So have जो है, आप ध्यान से सुनिएगा मेरी बात. I, you, we, they इनके साथ में यूज होगा have. For example, I have a car, they have money. अब आप पूछोगे has किसके साथ यूज होता है? So has यूज होता है he, she, it and singular names के साथ. For example, she has a car, right? Ram has a car, right? अगर किसी का नाम है, कोई थर्ड पर्सन है या फिर he, she, it है, इनके साथ में आप हमेशा has का प्रयोग करेंगे, have का नहीं. Now comes to had. So had basically has and have का past form है. Means to say अगर आपको कोई अपने past की बात बताने की, आपके पास past में आपके पास ये चीज थी, तो आप had का प्रयोग करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, और इसमें एक बात और है कि आपको कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है क्योंकि he, she, it हो, I, you, we, they हो, सबके साथ में had ही आना है. So there is no any confusion. She had a car, okay? He had a bike, they had a land. Part 2, negative sentences. So negative sentences में हम has और have का कैसे प्रयोग करेंगे, आइए जानते हैं. So this is very easy. Negative sentences में has, have, had all are equal. Only हम have का ही ज्यादा प्रयोग करते हैं. For example, I do not have a car. He does not have a car. Means he, she, it के साथ में जहां पर has का प्रयोग होता था, अब वहां पे has की जगह does ने ले ली है. So क्योंकि जो s has में लग रहा था, अब वो does में लग गया जाके, तो यहाँ पर he does not have a car. लेकिन have का ही प्रयोग हुआ है, has का नहीं. और अगर आप past की बात भी करते हैं तो भी आप had का प्रयोग नहीं करेंगे, have का ही प्रयोग करेंगे. बट does के स्थान पे did आ जाएगा, do और does के स्थान पे did आ जाएगा. I did not have car, he did not have car, they did not have a car. अगर आप नेगेटिव सेंटेंसेस की बात कर रहे हैं, so it is so easy to understand and keep it in your mind and learn it that you don't need to use has, had. Only you need to use have or at every place. Means अगर he, she, it है तो भी have because you already used does in that place. And अगर I है, we है, they है, you है, सबके साथ में have ही प्रयोग होना है. I, you, we, they के साथ में तो आप जो है do प्रयोग करोगे. एंड जो आपका had है, had तो कहीं आता ही नहीं है नेगेटिव सेंटेंसेस में, आप यहाँ पे did का प्रयोग करोगे, आपको had का प्रयोग नहीं करना है. He didn't have a car, they didn't have a car. So understood? So move on to part 3. Part 3, questions. What about questions? क्या होगा अगर हमें कोई क्वेश्चन पूछना है
और हैज और हैव का प्रयोग करना है। सो व्हाट वी डू, यहाँ पे भी बिल्कुल सेम फॉर्मूला है। यहाँ पे भी आपको हैड का प्रयोग नहीं करना है, हैज का भी कोई प्रयोग नहीं है। यहाँ पे भी हर जगह आप हैव का ही प्रयोग करेंगे। बट द डिफरेंस इज, यू नो, क्वेश्चन टाइप सेंटेंसेस में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले रख देते हैं। यानी कि हेल्पिंग वर्ब क्या है यहाँ पे, डू। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको पूछना हो क्या तुम्हारे पास कार है, सो हाउ विल यू आस्क, डू यू हैव अ कार। अगर आप उससे पूछ रहे हैं कि क्या उसके पास कार है, सो हाउ वुड यू मेक सेंटेंस, डज शी हैज अ कार। और अगर आप पास्ट की बात कर रहे हैं, तब आप, जैसे कि हमने नेगेटिव सेंटेंसेस में जाना था कि हम जो पास्ट सेंटेंसेस की बात करते हैं तो वहां पे हम डिड का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, डू यू हैव अ कार, डज शी हैव अ कार, डिड दे हैव अ कार। सो आपने यहाँ पे देखा कि हमने हैड का तो प्रयोग किया ही नहीं। सो क्वेश्चन टाइप सेंटेंसेस में एंड नेगेटिव सेंटेंसेस में हैड का कोई यूसेज ही नहीं है। सो दिस इज सो सिंपल टू लर्न। सो अब तक हमने सीखा कि पोजीशन में हम हैज, हैव, हैड का कैसे प्रयोग करते हैं, नेगेटिव सेंटेंसेस में कैसे करते हैं और क्वेश्चन टाइप सेंटेंसेस में हम कैसे करते हैं। लेकिन अगले आने वाले पार्ट में हम जानेंगे हैज, हैव, हैड एज अ हेल्पिंग वर्ब हम कैसे प्रयोग करते हैं। But before that, don't forget to subscribe this channel and like this video. Has, have, had as helping verb. It's very important to don't skip any part of this part. So, जैसा कि हम सब जानते हैं, has and have का introduction हमें कहाँ हुआ था, present perfect tense में, जिसमें कि has और have हमें verb की third form के साथ use करना था। जैसे कि इनमें उन sentences का प्रयोग होता है जो काम हमने अभी अभी खत्म किया है। फॉर एग्जाम्पल, चुका है, चुकी है, चुके हैं। सो बेसिकली दीज काइंड ऑफ सेंटेंसेस कम्स अंडर दिस सेक्शन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। सो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का क्या स्ट्रक्चर था, सब्जेक्ट, हैज और हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। सो प्रेजेंट परफेक्ट में जस्ट कीप इट इन योर माइंड कि आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज करनी है। सो इसको आप कभी भी स्किप मत कीजिएगा। अगर आप प्रेजेंट परफेक्ट की बात कर रहे हैं, जो काम आपने अभी भी खत्म किया है, तो वहां पे आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगानी है। और हैज और हैव, जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, ही, शी, इट और सिंगुलर नेम के साथ में हैज आएगा, आई, यू, वी, दे के साथ में हैव आएगा। सो इसको ध्यान में रखते हुए आप हैज और हैव लगाएंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। यू विल नॉट मेक एनी मिस्टेक इन योर फ्यूचर इफ यू अंडरस्टैंड दिस थिंग। For example, I have completed my work और she has gone home. So had. Had का introduction हमें कहाँ हुआ था? Past perfect में. Remember? So what is the structure of past perfect? Subject, had, V3. So आपको ये याद रखना है कि चाहे present perfect हो या past perfect, आपको हमेशा V3 ही यूज करना है, verb का थर्ड फॉर्म ही यूज करना है। और हैड के केस में तो आपको ये भी कंफ्यूजन नहीं है कि ही, शी, इट और सिंगुलर के साथ कुछ और यूज होगा और आई, वी, यू, दे के साथ कुछ और यूज होगा। देयर इज ओनली हैड टू यूज। ओके, सो आपको हर किसी के साथ में हैड ही यूज करना है। ज़्यादातर लर्नर्स और बिगनर्स इसी बात को लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं कि हैड और हैज, हैव में हम डिफ्रेंशिएट कैसे करें। तो मैं आज आपको एक बहुत ईजी तरीका बताती हूँ कि जो प्रेजेंट परफेक्ट होता है उसमें उन बातों की बात की जाती है जो काम आपने अभी अभी खत्म किया है। अभी प्रेजेंट की बात चल रही है और आपने कोई काम अभी अभी खत्म किया है, तो आपको वहाँ पे आप उसको यूज कर सकते हो। लेकिन जो पास्ट परफेक्ट होता है, पास्ट परफेक्ट मतलब पास्ट की बात है, प्रेजेंट की कोई बात नहीं है, इसमें पास्ट की बात है। तो पास्ट में आपने कोई काम खत्म किया था किसी काम से पहले, क्योंकि वहाँ पे एक टाइमलाइन जरूर होनी चाहिए कि I had completed my dinner before his arrival, और किसी काम के होने से पहले आपने ये काम खत्म कर लिया था, तो वहाँ पे आपको had का प्रयोग करना है and that is called past perfect. So basically past perfect timeline के साथ में ही यूज होता है। For example, I had finished work before dinner or she had left before I arrived. सो मेरी तरह आप प्लीज़ कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाती थी इनमें। मैं वॉज की जगह हैड का यूज़ कर देती थी, बट नाउ आई अंडरस्टूड दैट हैड का प्रयोग तो
मैं ये काम कर चुकी थी उसके आने से पहले। इस तरह के सेंटेंसेस में ही हैड का प्रयोग होता है। हर जगह हम हैड का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। या पोसेशन में यूज होगा या फिर पास्ट परफेक्ट में यूज होगा, जहाँ पे ये वर्ड्स होते हैं कि मैं ये काम कर चुका था, ये काम कर चुकी थी, वो आ चुका था ये होने से पहले, वो खा चुका था इस समय से पहले। तो दीज काइंड ऑफ सेंटेंसेस कम्स अंडर पास्ट परफेक्ट। तो यहीं पे आपको हैड का प्रयोग करना है, सो डोंट गेट कंफ्यूज। मूव ऑन टू पार्ट 5। So basically part 5 is nothing. It is all about writing. How should you write the short form? और आप बोलने में भी शॉर्ट फॉर्म का यूज कर सकते हैं जो कि नेटिव स्पीकर्स करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम आई हैव को शॉर्ट फॉर्म में ले सकते हैं आई हैव, और बोल भी सकते हैं आई हैव। शी हैज शीज, दे हैव देम, आई हैड आइड। हम आई हैड को कभी कभी वुड भी यूज करते हैं इसके प्लेस। So part 6, common mistakes. Common mistakes made by the beginners or the learners. For example, he have a car. Wrong. He has a car. I has completed my homework. Wrong. I have completed my homework. She had went there. Wrong. She had gone there. So just remember, has, have या had हो सबके साथ में V3 का ही उपयोग होगा, प्रयोग होगा। If you want to support me and appreciate my work, then please subscribe my channel and like this video and share this video to all of them, with your colleagues, with your friends, whoever want to learn spoken English. Please send this video to them. Part 7, practice section. So it is not for me actually, it is for you. So I will give you some sentences in Hindi and you have to translate it in English. And just let me know in the comments. आपको कमेंट में राइट करके मुझे बताना है कि इन सेंटेंस को आप इंग्लिश में कैसे लिखोगे। फॉर एग्जाम्पल, नंबर 1, मेरे पास समय है। नंबर 2, उसके पास पैसे थे। नंबर 3, क्या तुम्हारे पास फोन है? नंबर 4, मैंने काम पूरा कर लिया है। So you have to translate these all sentences and you have to just write in the comment box. Now you know the real difference between has, have and had, both as main verb and helping verb. If you found this video informative and helpful, please do not forget to like this video and subscribe to the channel. I'll see you in the next video. Till then, bye-bye and thanks for watching.